Yes, good morning students. As we have discussed about the baking soda. In the baking soda we use the NaCl plus ammonia plus carbon dioxide plus water. And there is a formation of ammonium chloride plus sodium bicarbonate is formed. Right? When this sodium bicarbonate is heated, that means heated, so there will be formation of Na2CO3 plus water plus carbon dioxide, which makes your food spongy and fluffy in the nature. This sodium carbonate is used for making washing soda. Used for making washing soda. Washing soda means that is used at your home to make the detergents or washing your clothes, etc. That is your washing soda. So first we will discuss about the washing soda. So what is washing soda and what is its formula? Washing soda. The formula of washing soda is Na2CO3 10 water molecule. What is this 10 water molecule? Means when sodium carbonate is mixed with 10 water of crystallization, then the sodium washing soda is formed. What does it mean? Means when we are having the Na2CO3 and 10 water molecules are added to one molecule of the sodium carbonate. ये एक सोडियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल के अंदर यदि हम 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करें तो द न्यू प्रोडक्ट विल बी फॉर्म एंड दैट न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज वॉशिंग सोडा. This is known as washing soda. If we heat it and we remove this 10 water molecules, then it will loses its property of washing. Means this 10 molecules of the water is important for the property of washing the clothes. And these 10 water molecules, when joined to any other molecules like sodium carbonate, the property will be changed, and this is known as water of crystallization. Understand? This is known as your water of crystallization. तो वॉशिंग सोडा कैसे बनता है आपका? वही पहले बाय प्रोडक्ट आपका मेन प्रोडक्ट क्या रॉ मटेरियल सोडियम क्लोराइड, उसके अंदर जब अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिक्स किया जाता है देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट. When this sodium bicarbonate is heated, there will be formation of Na2CO3 means sodium carbonate plus water molecules are removed with the evolution of the carbon dioxide gas. जो ये carbon dioxide gas निकली है that can be used as the fire extinguisher में use कर सकते हैं इसको. This sodium carbonate is used for washing soda. How it will be used for making washing soda? This is Na2CO3. When 10 molecules of water are mixed, that there will be formation of Na2CO3. Yes, this is known as your washing soda. कब बना? जब Na2CO3 के अंदर हमने कितने मॉलिक्यूल डाले? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स डाले. ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स डाले, सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक नेचर नो डाउट, लेकिन जब इसके अंदर हमने क्या डाला 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए इसके अंदर एक सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसकी जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज है वो चेंज होगी और जो नया प्रॉपर्टीज के साथ बना उसको क्या बोलेंगे हम? वॉशिंग सोडा. तो हाउ द वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड? It is just prepared by adding the water molecules in the sodium carbonate. और सोडियम कार्बोनेट कहाँ से बना? By heating your sodium bicarbonate. और सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ से बना था आपका? सोडियम क्लोराइड से. यानी जो आपका वॉशिंग सोडा बना उसके अंदर भी एज अ रॉ मटेरियल क्या यूज कर सकते हैं? NaCl एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है. Now what are the uses of washing soda? So the uses of the washing soda are कि sodium bicarbonate is used in making glass soap. जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट बना 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ये आपका यूज किया जाएगा किसके अंदर? ग्लास के अंदर. ग्लास बनाने में, सोप बनाने में. यानी इट इज बेसिक इन द नेचर, सो इट विल बी यूज्ड टू फॉर्म ग्लास सोप एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन द पेपर इंडस्ट्री. पेपर इंडस्ट्री में वॉशिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है एज अ मटेरियल. तो फर्स्ट यूज इसका क्या फॉर मेकिंग ग्लास सोप एंड द पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है. सेकंड
वॉशिंग सोडा है तो ये क्लींजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है फॉर एट द डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस का मतलब घरों में कपड़ों को धोने के लिए, यूटेंसिल वगैरह को धोने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, तो इट इज यूज एज ए क्लींजिंग एजेंट। अब ये वॉशिंग सोडा है तो इट कैन बी यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ द हार्डनेस ऑफ द वाटर। आपने देखा होगा कि आप घरों में जहां भी सबमर्सिबल वगैरह लगे हुए हैं, कई बार वहां से क्या आता है, आपका हार्ड वाटर आता है, उस हार्ड वाटर के अंदर आपका जो सोप है इट डज नॉट फॉर्म द लेदर, यानी वहां पे झाग नहीं बनते, तो वी यूज द वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर एट दैट प्लेस सो दैट इट कैन बी यूज अ लिटिल मोर बट इट कैन रिमूव द हार्डनेस ऑफ द वाटर। ये हार्डनेस ऑफ वाटर को भी रिमूव करने के लिए काम आता है। तो पहला किसमें, ग्लास ऑफ पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, सेकेंडली मैन्युफैक्चर ऑफ द बॉयस में यूज होता है, थर्डली मैंने क्या कहा कि ये वॉशिंग पर्पस के लिए, क्लींजिंग एजेंट के लिए यूज होता है द डोमेस्टिक पर्पस, और फोर्थ वन मैंने क्या कहा, हार्डनेस ऑफ द वाटर को रिमूव करने के काम आता है। दैट इज अबाउट योर वॉशिंग सोडा। अब मैंने इसमें आपको बताया था कि Na2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल, दिस 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, how can you prove that it can change the property of a material, and different type of the example of the water of crystallization we will discuss here. So next topic is your, or the we can say that water of crystallization or are the crystals of salts really dry। आप क्या सोचते हैं, जितने भी हम सॉल्ट्स लेते हैं सब के सब क्या कंप्लीटली ड्राई इन नेचर होते हैं। तो टू प्रूव दैट फर्स्ट वी आर हैविंग अ सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन इज योर कॉपर सल्फेट। इसके लिए आपने क्या करना है, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेके क्या करना है, इसके अंदर आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, बिल्कुल ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर ना वाटर की ड्रॉपलेट होनी चाहिए ना कुछ भी होना चाहिए। यू विल टेक द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन and that copper sulfate solution is blue in color. In the starting, what will be the color of the solution? That will be blue color. Add small amount of the copper sulfate in it. थोड़ा सा हमने क्या किया, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, हमने देखा इसका कौन सा कलर है, ब्लू कलर का है। हमने इसको धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू किया। When we heat it, after some time, what will you observe? You will see that some water droplets will be found at the corner of the test tube. These are known as your water droplets. These are known as your water droplets. Understand? तो water droplets आपको उस पे किस पे दिखाई देंगी, टेस्ट ट्यूब के अपर साइड पे कॉर्नर्स पे दिखाई देंगी। ये water droplets कहाँ से आई? When we heat the copper sulfate, then the water vapors, the water molecules present in it, they will changes into the water vapors and deposited on the walls of the container, right? और टेस्ट ट्यूब की उस पे साइड में आके क्या होगा, डिपॉजिट होना शुरू हो गए। तो what that means water droplets वहां पे चलेगी, not down the color of the solution, salt, not color of salt। आपने ब्लू कलर का था, ब्लू कलर से किस कलर में चेंज हो गया, आपने इसका कलर देखा, तो that will be white in nature, यानी ब्लू से व्हाइट हो गया, किसकी वजह से, when we heat it। Understand? When we heat that copper sulfate which is blue in the color, and after some time what will you observe, that the color will changes into the white color and the water droplets can be seen on the top of the container or your test tube। what will happen, but क्या हुआ था कि जो उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, जब आपने उसको हीट किया वेपर्स के फॉर्म में, वो क्या हो गया, आपके उसमें से एस्केप हो गए, जिसकी वजह से इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to take a very small amount of 1 drop of the water and add in it। एक ड्रॉप वाटर की लेनी है ड्रॉपर की हेल्प से और इसके अंदर डाल देना। What will you observe? The white color again changes into the blue color। White color changes into the blue color। What does it mean? कि जैसे इसके अंदर वाटर की ड्रॉपलेट गई, again it will be formed the hydrated salt। This salt is known as hydrated salt। Understand? तो what does it mean? कि hydrated salt का उसका कलर कौन से कलर का, ब्लू कलर का है। और जब आपका व्हाइट कलर का सॉल्ट बना जिसमें आपका सिर्फ CuSO4 होगा, that will be known as anhydrous या unhydrated salt। So what does it mean? Means when we heat the solution,
salt, what will happen? The color of the salt will change due to the presence of the water molecules. And these water molecules are known as water of crystallization. So what is the meaning of the water of crystallization? The number of water molecules, the number of water molecules attached with the salt so that its property or its color will be changed, that is known as your water of crystallization. This water of crystallization is also responsible for the crystallization of the salt. जो सॉल्ट है उसको क्रिस्टल की फॉर्म में चेंज करने के लिए भी आपका ये क्या रहेगा, कॉपर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट. तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मींस नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू योर, किसके साथ अटैच है, टू योर सॉल्ट टू चेंज इट्स प्रॉपर्टी एंड द कलर एटसेट्रा. ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया फेरस का, कॉपर सल्फेट का, जब उसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल चल रहा है, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रोल. बी रिमेंबर This is known as your blue vitriol. उसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम आपका फेरस सल्फेट. That is green in the color and this is known as your green. It is green in color. It is known as your green vitriol. Right? Green vitriol. What does it mean? Means when you are taking instead of the copper sulfate, you can take the ferrous sulfate in that, which is green in color, and when you start heating into a temperature, the water droplets can be seen at the top of the beaker or your test tube, and the green color again changes into your white color. Right? तो ये किस कलर में चेंज हो जाएगा, आपका व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा. तो ग्रीन से व्हाइट होना जब हीट करता है, इसका मतलब है कि जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स थे उसके अंदर से निकाल दे गए. एक फेरस सल्फेट के अंदर मैक्सिमम 7 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं. उसी तरह से कॉपर सल्फेट के अंदर कितने अटैच हो सकते हैं, आपके 5 वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं. अब Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट. यदि मैं इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच कर दूं, तो व्हाट डज इट मींस, दैट इट विल बी चेंजेस इनटू द वॉशिंग सोडा. यानी the properties of the solute substance or the salt is changed when we add the water molecules in it. That 10 molecules of the water are known as water of crystallization. यानी Na2CO3 के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल बन गया, तो इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी और एक क्लींजिंग एजेंट के रूप में यूज होने लगा. और जैसे हम इसको हीट करेंगे, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बनेगा. दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द वॉशिंग पर्पस. ओके, देयर आर द सम एग्जांपल. कॉपर सल्फेट हो गया, आपका ग्रीन विट्रोल हो गया या ब्लू विट्रोल बोलते हैं, वॉशिंग सोडा हो गया. उसी तरह से कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है. राइट? तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, both are having the water molecule, but depending upon the number of the water molecule, both are having the different property. This is known as your POP, plaster of the Paris, which is known as calcium sulfate हेमीहाइड्रेट. और इसके अंदर हमने 1.5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बन गया, which is having the different property, and that is known as your gypsum. Understand? Now we will discuss about the किसके बारे में होगा, आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में हो गया. यानी हम कह सकते हैं कि ये जो कॉपर सल्फेट जिसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल है, फेरस सल्फेट जिसके अंदर 7 वाटर मॉलिक्यूल है, Na2CO3 जिसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल है, दे आर रियली वेट. ये ड्राई नहीं है. अब मान लो मैं कहूं आपको NaCl है, आप इसको जितना मर्जी हीट कर लीजिए, there will be no water vapors formation will take place. What does it mean? It is really dry in the nature. उसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, उसको आप जितना मर्जी हीट कीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो what will you observe? That no water vapors will be present on the tip of the test tube. So it means it are really dry. But some of the salts are not really dry. They contain some molecules of the water, and due to the molecules of the water present in that salt, the properties as well as the color and the chemical properties of that salt will change. And that water molecules are known as your water of crystallization. इसी की वजह से इनके crystal formation में भी help होती है, right? So this is about your water of crystallization. Last topic of yours is your plaster of Paris.
प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको जनरली हम बोलते हैं पीओपी, पॉप। अब जब भी किसी के बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर एक सॉल्ट लेता है व्हाइट से कलर का और उसको क्या करता है, पानी में मिक्स करता है और पट्टी के ऊपर आपके लगाता चला जाता है, जिससे भी बोन फ्रैक्चर है, और देखते हो कि आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम्स हार्डन। यानी जब उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए गए तो वो क्या होता है, हार्डन हो जाता है, और जो आपकी इमोबिलिटी ऑफ दैट पार्ट इज पॉसिबल ड्यू टू योर हार्डनिंग ऑफ दिस सब्सटेंस, कि आपका पैर हिलेगा नहीं या हाथ में लगे तो वो हिलेगा नहीं। किसकी वजह से, जब हमने पीओपी के अंदर क्या डाला, वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए। और इसका यूज सेकेंडली क्या कह सकते हैं, व्हेन इट इज मिक्स विद द वाटर मॉलिक्यूल इट इज यूज्ड टू फॉर्म द स्टैचूज एक्सेट्रा। आप बाजार से जाते हो तो पूछते हो किसी शॉपकीपर से, ये स्टैचू इतना महंगा क्यों है, वो कहेगा मैम ये पीओपी का बना है, ये उसका जिप्सम बोल देते हैं जिसको। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हिच इज नोन एज कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल means calcium sulfate हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब है हाफ मॉलिक्यूल और हाइड्रेट का मतलब वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है। तो दिस इज नोन एज योर ऑन हीटिंग जिप्सम। अब ये बनता कैसे, जिप्सम व्हिच इज CaSO4 2 water molecules, this is known as your gypsum. This gypsum when it is heated at 373 Kelvin और 100 डिग्री सेल्सियस, सेम इज देयर। जब हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल विद द इवोल्यूशन ऑफ 3/2 लिख लो वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें से क्या होता है, निकल जाता है, और जो नया प्रोडक्ट बनता है दैट इज नोन एज योर पीओपी। मींस इस पीओपी में जब हम दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, आपका जिप्सम में चेंज हो जाएगा। मींस इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। व्हाट डज इट मीन, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस इज फॉर्म्ड। This plaster of Paris is supporting fractured bone। मैंने भी आपको बताया कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं ऑर्थोपेडिक के पास, जब आपको बोन में फ्रैक्चर हो जाता है, कहीं भी हो सकता है किसी के भी, तो आपका क्या होता है, वो पीओपी का यूज करता है। पीओपी को किसके अंदर मिक्स करता है, वाटर के अंदर मिक्स करा, और जो वाटर के अंदर उसने मिक्स किया तो आपका क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यानी ये पाउडर्ड फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में, लेकिन जैसे इसने मॉइस्चर एब्सॉर्ब किया इट विल चेंजेस इट्स प्रॉपर्टी एंड इट विल बिकम्स हार्डन इन द नेचर। हार्डन हो जाता है जब पानी के अंदर इसको मिक्स करते हैं, और जब मिक्स किया तो हार्ड सॉल्ट मिक्स करने के बाद क्या होगा, आपका ये हार्डन हो जाएगा वाटर के अंदर मिक्स करने के बाद, और इट विल बी यूज्ड टू फॉर्म द स्टैचूज, डेकोरेटिव पर्पस, डेकोरेटिव कुछ भी चीजें डेकोरेटिव बनाने हैं वो भी कर सकते हैं इससे आपकी, और जो फ्रैक्चर्ड होना है उनको इमोबिलिटी देने के लिए आप इसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब जब पीओपी के अंदर आप वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे तो इट विल चेंजेस इनटू अ सॉलिड मास, कि जब इसके अंदर मैं 3/2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रही हूं तो इट विल बी चेंजेस इनटू अ सॉलिड मास एंड दैट सॉलिड मास इज नोन एज जिप्सम। ये सॉलिड मास में चेंज हो जाएगा और जिसको हम क्या बोलेंगे, जिप्सम बोलेंगे। और ये जिप्सम आपकी डिफरेंट टाइप्स के प्रॉपर्टीज में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताइए, यानी इसके साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, इसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड। डिपेंडिंग अपॉन द वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्ट विल आल्सो चेंज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये हार्ड सॉलिड मास में चेंज हो जाता है और ये पीओपी में यूज होता है, लेकिन जैसे हमने इसके अंदर वाटर डाला इट विल अगेन चेंजेस इनटू द जिप्सम, और जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो क्या बनता है, पीओपी बन जाता है। तो व्हाट डज इट मीन कि आपका CaSO4 ट्वाइस बता चुकी हूं कि दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन changes the properties of the salt depending upon the number of the water molecules attached to that. Understand? This is about your whole chapter. Do you think that next chapter will be started today or tomorrow? Is there any doubt related to this? Recording बंद कर